पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੋ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਲੋ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ, ਸੈਲੋ ਸੈਕੰਡ ਥਿਊਰਮ ਐਂਡ ਸੈਲੋ ਥਰਡ ਥਿਊਰਮਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੌਚੀ ਥਿਊਰਮ ਫॉर ए फाइनाइट ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਚੀ ਥਿਊਰਮ ਫॉर ए फाइनाइट ग्रुप। सो सेम स्टेटमेंट है, फर्क क्या है कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ that is called a Cauchy theorem for a finite group. So what is the statement? So statement is, if G is a finite group, so in that case G was a finite abelian group. Here G is a finite group and such that any prime number P which divide order of G. So P ਸਾਡੇ ਕੋਲ prime number ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ order of G ਨੂੰ divide ਕਰਦਾ। Then there exists a non-identity element belongs to G such that order of A is equal to P. So this is a Cauchy theorem for finite group. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ finite abelian group। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ क्या है? So it is a just direct application of shallow theorems. Now we know that अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ P order of G ਨੂੰ divide ਕਰਦਾ, so since P prime number ਆ, order of G ਨੂੰ divide ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੈਲੋ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there exists a subgroup say H of G such that order of H is equal to P. Order of H is equal to P ਕਿਉਂਕਿ P order of G ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ G ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਲਾਣੀ, every group of prime order is cyclic। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ H ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ तो इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर भी कोई ना कोई होएगा। तो देयर एग्जिस्ट ए सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू G such that H is generated by A। क्योंकि H साइक्लिक ग्रुप आ तो ऑर्डर ऑफ H ते ऑर्डर ऑफ A सेम होएगा और H का ऑर्डर कितना है? P है। सो A का ऑर्डर भी P हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, देयर एग्जिस्ट सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू G such that order of A is equal to P, right? This is my result.
So this is a Cauchy theorem for a finite group. तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ Cauchy theorem for finite abelian group. सो दोनों दी थ्योरम ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ एग्जाम च पूछी जाए Cauchy theorem for finite abelian group तो ਅਸੀਂ पहले वाला प्रूफ देना। जे पूछा जाए Cauchy theorem for finite group तो ਅਸੀਂ इस वाला प्रूफ देवांगे। नाउ नैक्सट ਅਸੀਂ एप्लीकेशन डिस्कस करन जा रहे हैं। अगर मेरे कोल कोई भी ग्रुप है जिहदा ऑर्डर p दी पावर n है, मान लो जिदा 8 हो गया, 27 हो गया, है ना, 2 दी पावर 3 8 हो गया, 3 दी पावर 3 27 हो गया, या 4 हो गया, या 16 हो गया, ठीक है जी। तो वेयर साडे कोल p प्राइम नंबर है, so where p is some prime number, ठीक है जी। अगर साडे कोल ग्रुप है जिहदी पावर p रेज़ टू पावर n है ऑर्डर, तो और साडे कोल की आ गया p प्राइम नंबर है। और इहदे विच अगर h कोई सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g है, सो ग्रुप g है such that order of h which is equal to p raised to power n minus 1। सो ਇਹਦੀ पावर कितनी है, एक घट आ, है ना। तो अगर ਇਹਦੀ पावर p raised to power n आ तो ਇਹਦੇ अंदर सब ग्रुप ਦੀ पावर अगर p raised to power n हो जाती है तो असी प्रूव करना शो दैट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h है ये हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो ये ओदा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। सो बड़ा ध्यान नाल समझना, मतलब ये कि जिद्दां साडे कोल कोई ग्रुप आ जिहदा ऑर्डर है 8, यानी ऑर्डर ऑफ जी 2 दी पावर 3 है, ठीक है जी। सो अगर ये सब ग्रुप है जिहदा ऑर्डर 2 की पावर 2 होवे तो वो किद्दां दा होएगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होएगा। इस चीज़ नूं असीं प्रूव करना और इनू असीं किसी भी ऑर्डर लई, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर लई जिहड़ा को इस फॉर्म का है इनू असीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सानू पता कि साडे कोल एच जिहड़ा हुंदा सब ग्रुप, ये पार्ट हुंदा नॉर्मलाइजर ऑफ एच का, और नॉर्मलाइजर ऑफ एच पार्ट हुंदा जी का, ठीक है जी। सो मतलब कहन दा कि सब तो वड्डा ग्रुप हो गया जी, जिन्हों असीं ब्लू कलर च रखिया। उस तो बाद साडे कोल आ गया रैड कलर वाला जिन्हों असीं नॉर्मलाइजर ऑफ एच कहांगे, और सब तो छोटा साडे कोल की आ गया एच आ गया, जिन्हों असीं येलो कलर दे विच मैंशन कर रहे हैं। सो वी गैट दिस वैल्यू। तो बड़ी कॉमन थ्योरम है जिहड़ी कि असीं ऑलरेडी सानू असीं पढ़ते आए हैं। तो लैग्रैंजियस थ्योरम, पहला असीं इन्हां दोनों ते लैग्रैंजियस थ्योरम लावांगे, फिर इन्हां दोनों ते लावांगे, ठीक है जी। सो उहदे अकॉर्डिंग इहदा साडे कोल ऑर्डर ऑफ एच जिहड़ा है वो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच नूं डिवाइड करेगा। एंड सो मैंशन हेयर कि बाय लैग्रैंजियन थ्योरम। सो एग्जाम दे विच जरूर लिखना बाय लैग्रैंजियन थ्योरम। सिमिलरली हेयर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है जी। हुण सानू इन्हां दे ऑर्डर दिते हैं। सो इहदा ऑर्डर तुहाडे कोल कितना है, p रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो p रेज़ टू पावर n माइनस 1 दिता होया, ये किनू डिवाइड कर रहा, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच नू डिवाइड कर रहा, और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच जिहड़ा है ये किनू डिवाइड कर रहा, ये कर रहा p रेज़ टू पावर n नू कर रहा। इहदा मतलब इहदियां सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आ, किहड़ी किहड़ी, जां तां इहदा ऑर्डर p दी पावर n होएगा ते जां इहदा ऑर्डर p दी पावर n माइनस 1 होएगा। So from this we get two possibility,
p रेज़ टू पावर n ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗਾ p रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। सो दो पॉसिबिलिटी मीनस दो केस, तो असी इनू दो केसां दे हिसाब नाल चलांगे। केस नंबर 1 जिहड़ा कि साडे कोल सिंपल हो जांदा कि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच ये किहदे बराबर आ गया, p की पावर n के बराबर आ गया। अगर p की पावर n के बराबर है और ये किहदे बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ g के बराबर आ गया। और नाल दे नाल सानू पता नॉर्मलाइजर ऑफ h जिहड़ा g का सबसैट आ। सो वन थिंग इज क्लीयर, g किहदे बराबर आ गया, ये नॉर्मलाइजर ऑफ h के बराबर आ गया। ठीक है जी, सो g के एलीमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ h के बराबर आ गए। जे नॉर्मलाइजर ऑफ h के बराबर आ गए तो वन थिंग इज क्लीयर, साडे कोल h जिहड़ा है ये आ गया नॉर्मल सब ग्रुप या नॉर्मल इन ए ग्रुप जी। ठीक है जी, सो ये साडे कोल फस्ट केस दे विच असी इनू प्रूव कर लिया। सो सैकंड केस दे विच साडे कोल ऑर्डर ऑफ, सो केस नंबर 2 मैंशन करो। इस केस च ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच किहदे बराबर है, p की पावर n माइनस 1 है। और ऑर्डर ऑफ g बारे सानू पता है ये है p रेज़ टू पावर n के बराबर से। ठीक है जी, सो इस चीज़ बारे सानू क्लीयर है। सो एक पार्ट असी प्रूव कर लिया। हुण इत्थे सिचुएशन की हो गई, ऑर्डर ऑफ h सानू पता किहदे बारे दिता है, p की पावर n माइनस 1 बारे दिता है। ਇਹਦਾ मतलब हुण ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि h जिहड़ा है इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ h और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो h की वैल्यू तो नॉर्मलाइजर ऑफ h की वैल्यू सेम हो गई। जे सेम हो गई और ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल दिस इज़ ए नॉर्मलाइजर ऑफ h, तो h साडे कोल इस तरह का बन गया। ਇਹਦਾ मतलब h is normal in h। As we know that since center of G, because its element commute with h, then it is a part of normalizer of h, these values. So what is normalizer of h? H, it is equal to h. Also it is a abelian group, also it is a normal in h. So its quotient group exists. So what is quotient group? So its quotient group which is a order of G बटा center of G, ये साडे कोल quotient group आ गया। तो असी इहदा ऑर्डर नूं लभण दी कोशिश करिए। इहदा ऑर्डर होएगा ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G। तो G का ऑर्डर तो सानू पता p रेज़ टू पावर n, सेंटर ऑफ G का सानू ऑर्डर नहीं पता, एक वो लभना। दूजा साडे कोल की आ ऑर्डर ऑफ असी h बटा सेंटर ऑफ G लै लीए। ठीक है जी, दिस वैल्यूज लै लीए। अगर इनू देखिए तो यदा ऑर्डर भी असी लभ सकते हैं। ठीक है, मन लो क्योंकि सेंटर ऑफ G किहदा सब ग्रुप आ, G का, तो नैचुरली ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, सो सिंस center of G which is a part of G, a subgroup of G, again by Lagrange's theorem order of center of G which divides order of G. So it means what is this, it is p raised to power n. So ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ center of G ਹੈ ਇਹਦਾ ऑर्डर ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, p ਦੀ ਪਾਵਰ m ਵਰਗਾ, और m किदां दा होएगा विच इज़ लैस दैन इक्वल टू n। ठीक है जी, सो इस तरह का यदा ऑर्डर हो जाएगा। हुण इत्थे असी वैल्यू पुट की तो यदी वैल्यू कितनी आ गई, p की पावर n माइनस m, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है n और नीचे कितनी है p की पावर m। सो दिस वैल्यू इज p रेज़ टू पावर n माइनस m। और सिमिलरली दूजे पासे आपां देखिए p रेज़ टू पावर n माइनस m माइनस 1 ਜਾਂ n माइनस 1 माइनस m दोनों के ऑर्डर नूं असी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਸਾਰੇ p ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ, p ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ p ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਰਡਰ ਆਫ g ਹੋ ਜਾਵੇ। assume that, so what we will prove it with the help of induction. So assume that let n is greater than 1. So assume that result is true for all p group, for all p groups of order less than order of g। मान लो भी जिन्हां दा ऑर्डर g तो ऑर्डर घट है उन्हां लई साडा रिजल्ट ट्रू है। हुण इत्थे देखिए इहदा जिहड़ा ऑर्डर है ये g तो लैस हो गया, g माइनस m, और अगर लैस हो गया तो इहदे लई साडे कोल इंडक्शन दे लई साडे कोल इहदी वैल्यू, क्योंकि n माइनस m जो भी है ये किदां दा होएगा, ये लैस दैन n होएगा, ठीक है जी। अगर लैस दैन n होएगा तो इहदा मतलब रिजल्ट इहदे लई ट्रू हो गया। जे इहदे लई ट्रू हो गया तो इहदे तो एक घट ऑर्डर आला यानी p रेज़ टू पावर n माइनस m अगर कोई सब ग्रुप है तो वो इहदे विच किदां दा होएगा, नॉर्मल होएगा। दैन इट मीन्स बाय गिवन हाइपोथेसिस h by assumption h by center of g, h by center of g, this is a normal subgroup of group g by center of g, right। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाती, उस इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक साडा रिजल्ट हो गया। सो इट इंप्लाइज वन थिंग इज क्लीयर कि जिहड़ा एच है ये किदां दा हो गया, ये हो गया नॉर्मल इन जी। व्हाट इज दिस, बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ जी, सो एच इज नॉर्मल इन जी। अगर एच नॉर्मल इन जी आ गया तो यदा मतलब साडे कोल जी किदां दा हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एच दे बराबर हो गया, ठीक है जी। जे जी नॉर्मलाइजर ऑफ एच दे बराबर हो गया तो यदा मतलब साडे कोल की आया कि जिहड़ा साडे कोल जी है दिस वैल्यूज, अगर मान लो इस तो साडे कोल क्लीयर ही हो गया कि जिहड़ा जी एच साडे कोल है दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो ये साडे कोल दूजा केस आ जिहदे च असीं प्रूव करना कि एच नॉर्मल हो गया, क्लीयर। तो इट प्रूव आवर रिजल्ट। सो दो केसिस दे विच असीं डिवाइड कर लांगे और दोनों केसिस दे विच डिवाइड करके असीं रिजल्ट नूं प्रूव कर लांगे। नाउ इहदे तो ही साडे कोल एक क्वेश्चन होर बन जांदा कि जिहड़ा पी ग्रुप होवे वो हमेशा सिंपल होएगा, है ना। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਵਿਚ ਇਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ नो ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਵਾਂਗੇ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि एनी पी ग्रुप, कोई भी पी ग्रुप जे असी लै लीए वो किदां दा होएगा, वो सिंपल नहीं होएगा, नॉट ए सिंपल, दैट इज नॉट ए सिंपल। सो हाउ आई विल प्रूव दिस रिजल्ट भी कोई भी आप पी ग्रुप लै लीए वो सिंपल नहीं होएगा। मान लो बड़ा सिंपल रिजल्ट आ, अगर मेरे को जी ग्रुप आ, ये पी ग्रुप आ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ p ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ p ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, p ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। तो ਸੈਲੋ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ p ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ p ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ p ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ, तो ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ
p ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਹੋਏਗਾ। So it means by Shallow theorem, by Shallow first theorem, right here it is a first theorem, G has a subgroup, G has a subgroup, उस सबग्रुप का नाम रख लीए H of order p रेज टू पावर n-1। तो G च एक सबग्रुप होएगा जिहदा ऑर्डर p रेज टू पावर n-1 होएगा ना, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ इदां भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू p रेज टू पावर n-1। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक H की होएगा, सिंपल होएगा। सो H की होएगा, नॉर्मल होएगा। सो H इज नॉर्मल इन G, ठीक है जी। और H किदा दा नॉन ट्रिवियल आ, क्योंकि ना तो G के बराबर ना आइडेंटिटी के बराबर है। यदा मतलब साडे कोल की है कि जिहड़ा साडे कोल G है इट इज़ नॉट ए सिंपल ग्रुप। So it is not a simple group. Simple group की हुंदा which has no proper normal subgroup, ठीक है। तो इहदे तो आपां एक प्रॉपर्टी कह लो या एक रिजल्ट कर लो, याद रखना कि कोई भी P ग्रुप है वो साडे कोल किदां दा होएगा, नॉट सिंपल होएगा। मान लो सानू UGC दे एग्जाम दे विच कोई क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो ग्रुप ऑफ G, इहदा ऑर्डर है 8, ठीक है जी, और थले 4 ऑप्शन दे दित्तियां जांदियां। 1 इज इट इज़ ए सिंपल, सैकेंड इज नॉट सिंपल, इधर थर्ड, फोर्थ। तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये प्राइम ग्रुप आ। अगर प्राइम ग्रुप आ, P ग्रुप आ, सॉरी जे P ग्रुप आ तो P ग्रुप किदां दा हुंदा, नॉट सिंपल। सिंपल आंसर कि इट इज़ ए नॉट ए सिंपल। तो नैक्सट असी रिजल्ट देखिए। The statement is every group of order 15 and 35 is a cyclic, ठीक है जी। सो वो ग्रुप जिन्हों का ऑर्डर 15, 35 वर्गा है वो साइकलिक होंगे, ठीक है जी। मैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर साढ़े को 15 ले लिया, मान लो दिस इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, ठीक है जी। तो सैलो थ्योरम की एप्लीकेशन अप्लाई करन लगा। 15 नूं मैं तोड़ लिया इंटू प्राइम फैक्टर च, तो दे आ गया 3 गुणा 5। सो दिस इज अ 3 इंटू 5 विच इज़ ए 15, ठीक है जी। नाउ दिस इज ए G ग्रुप। हुण G ग्रुप दे विच साडे कोल 2 तरह दी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ठीक। मैं इनू अलग अलग मैंशन कर लेना। एक है सैलो 3 सब ग्रुप, सैलो 3 सब ग्रुप होंगे, ठीक। और उन्हों का ऑर्डर कितना होएगा, उन्हों का ऑर्डर 3 होएगा, ऑफ ऑर्डर 3। क्लीयर हो गया। दूजे पासे सैलो 5 सब ग्रुप होंगे और ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना होएगा, ਇਹਦਾ ऑर्डर साढ़े कोल 5 होएगा। ਇਹਦਾ ऑर्डर 3 आ और ਇਹਦਾ ऑर्डर 5 है। हुण आपां नंबर ऑफ सैलो 3 सब ग्रुप लभीए, ये होणगे 1 जमा 3 K के बराबर। और जिहड़ा किनू डिवाइड करनगे, 3 नूं छड्ड के बाकी टर्म कितनी है, 5 आ। ਇਹਦਾ मतलब K की वैल्यू लभीए, K की वैल्यू सिर्फ साढ़े को 0 हुई। 0 का मतलब कि इत्थे 0 पुट किया तो नंबर ऑफ सैलो P सब ग्रुप कितने हो गए, 1। जे 1 हो गए तो यह मतलब G दे विच इक्को ही सैलो P सब ग्रुप होएगा। दैन इट मीनस G हैज़ ओनली 1 सैलो 3 सब ग्रुप, ठीक है। ਉਹਦਾ नाम रख लीए से H। G हैज़ ओनली 1 सैलो 3 सब ग्रुप और ਉਹਦਾ नाम रखता H। और क्योंकि 1 मीन यूनीक आ, तो सैलो
ਸੈਕੰਡ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ it is normal in G which must be normal in G. So this is a normal in G. ठीक है जी. So H ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? H ਦਾ ਆਰਡਰ 3 ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੈੱਲ 5 ਸਬ ਗਰੁੱਪ. तो ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭੀਏ. ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? 1 + 5k ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ G ਨੂੰ, तो 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਕੀ ਬਚੀ? 3. ਇਹਦੇ ਤੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 0. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੈੱਲੋ 5 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. तो ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਆਲਸੋ G has only one cello 3 subgroup say K, और क्योंकि कल्ला है तो which must be नॉर्मल इन G. ठीक है जी. और ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 5 ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ 3 ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ. ਐਵਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ. तो H ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ A, और ਆਰਡਰ ਆਫ A कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. ए किदा एलिमेंट? G का एलिमेंट. दूजे पास देखिए ये भी प्राइम ऑर्डर आ, तो नैचुरली ये भी साइक्लिक होएगा. ਇਹਦਾ भी कोई ना कोई जनरेटर होएगा. B ले लिए, और ऑर्डर ऑफ B साढ़े कोल 5 के बराबर हो गया. ठीक है जी. ये असी रिजल्ट लगा लिया. अगली गल देखिए, सानू पता ऑर्डर ऑफ ए बी किहदे बराबर हुंदा? ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी. अगर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी 1 के बराबर हो जाए. ये तुहानू पता 3 के बराबर आ पता 5 के बराबर आ, और किहदे बराबर हो गया? 1 के. जे 1 के बराबर हो गया, सो दिस वैल्यू इज 3 × 5, तो कितना आ गया? 15 आ गया. ठीक है. ए भी G का एलीमेंट आ, B भी G का एलीमेंट आ, तो ਇਹਦਾ मतलब AB प्रोडक्ट भी G का एलीमेंट आ, और ਇਹਦਾ ऑर्डर ते ਇਹਦਾ ऑर्डर G का ऑर्डर दोनों सेम आ. आल्सो ऑर्डर ऑफ G ਤੇ ऑर्डर ऑफ AB दे आर इक्वल. ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ G ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ G ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ G ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ every group of 35 is cyclic, and there are many more examples. So what is the statement of this type of question? The statement of this type of question is every group of order 15, 35 are cyclic. Every group of this order are cyclic, right? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲੋ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ. तो every group, मैं स्टेटमेंट लिख लेना, every group of order 40
every group of order 40 has a normal subgroup of order 5। ठीक है, तो बेसिकली आप 5 ਨੂੰ ਹੀ हैंडल कर रहे हैं। ठीक, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ every group of order 40 is not simple, है ना। सो कई ढंग दे नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता। अगर आपां नूं अंडरस्टैंडिंग आ तो आपां उहनूं प्रूफ उहदा दे देवांगे। अगर सानूं सबजैक्ट की क्लैरिटी नहीं है तो असी उहदा रिजल्ट जिहड़ा वो नहीं प्रूव कर सकांगे। हुण आपां देखिए 40 दे ग्रुप नूं, हुण आपां स्टेटमेंट नूं छड्ड दईए तो दिस इज साडे कोल ग्रुप आ गया 40। सो 40 ग्रुप नूं मैं प्राइम फैक्टर च किद्दां लिख सकदा? सो 2 raised to power 2 into 5, राइट। ਇਹਦਾ मतलब जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो तरह के ग्रुप आ। एक तो है सैलो 2 सब ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन च दिता है सिर्फ 5 की गल हो रही है तो नैचुरली ਇਹਦੀ लोड़ नहीं पैनी। दूसरा सैलो 5 सब ग्रुप, 5 सब ग्रुप, ठीक है जी। तो आप 5 सब ग्रुप नूं चैक करिए तो नंबर ऑफ सैलो 5 सब ग्रुप किन्ने होणगे? 1 जमा 5 के। तुसी प्रॉपर एग्जाम च प्रॉपर लिखना। सो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा, तुसी एग्जाम दे विच इहनूं प्रॉपर लिखना कि जी है सैलो 2 सब ग्रुप एंड सैलो 5 सब ग्रुप, then number of सैलो 5 सब ग्रुप आर 1 plus 5k such that it divides 4। जदों इन्हें उन्होंने डिवाइड किया तो k की कोई वैल्यू आई 0। जे 0 आई तो क्लीयर हो गया कि g साडे कोल हैज ओनली 1 भी लिख सकते हैं। ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ यूनीक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ਜਾਂ यूनीक सैलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होना जी? 5, है ना, 5 ही होएगा ना। और क्योंकि यूनीक आ तो सैलो सैकंड थ्योरम के मुताबिक वो हमेशा कितना दा होएगा? नॉर्मल। सो जी हैज़ यूनीक सैलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विच इज़ नॉर्मल इन जी, विच इज़ नॉर्मल इन जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ प्रूफ हो गया। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन प्रूव आवर रिजल्ट। हजे ਆਪਾਂ सैलो 2 सब ग्रुप ਨੂੰ डिस्कस किया ही नहीं। अगला ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਜਾਂ क्वेश्चन डिस्कस करिए जिस ग्रुप का ऑर्डर 45 हो गए, यानी 45 का मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जी हैज़ एक तो सैलो 3 सब ग्रुप होणगे जिहदा ऑर्डर होएगा किन्ना जी? 9, ठीक है ना। 3 की पावर 2 हिस्सों च मैं डिवाइड कर लेना। दूजे पासे सैलो 5 सब ग्रुप होणगे जिहदा ऑर्डर होएगा 5 की पावर 1 यानी 5, है ना। ध्यान च रखिए, माइंड दे विच रखना। ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना? 9 क्यों? 3 की पावर 2 5 क्यों आ? सो 5 की पावर सिर्फ 1। हुण देखिए नंबर ऑफ सैलो पी सब ग्रुप।
सो नंबर ऑफ सैलो 3 सब ग्रुप चेक करिए किद्दां दे होणगे 1 जमा 3 के वर्गे और 1 जमा 3 के डिवाइड करनगे 5 नूं तो के दी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। 0 का मतलब सिर्फ इको ही सैलो सब ग्रुप आ जिहड़ा नॉर्मल होएगा। ਇਹਦਾ मतलब G हैज़ ओनली या यूनिक सैलो 3 सब ग्रुप ऑफ order 9 so which is normal in G। ठीक है जी, ये होएगा। तो अगर आप इहदा कोई नाम रखना चाहते हैं तो तुसी नाम इहदा H रख दो, यानी ऑर्डर ऑफ H 9 हो गया और H किद्दां दा सब ग्रुप आ नॉर्मल सब ग्रुप है G दे विच। हुण आ जाओ इधरले पासे सेम प्रोसीजर। सो 1 प्लस 5 के किनों डिवाइड करेगा 9। तो के दी वैल्यूज देखिए सिर्फ 0 ही आई। जे 0 ही आई ਇਹਦਾ मतलब G हैज़ यूनिक सैलो 5 सब ग्रुप से के such that order of K equal to 5 also K is normal in G। दोनों नॉर्मल हो गए, नॉर्मल इन G। ठीक है जी, दोनों नॉर्मल हो गए और एक दा ऑर्डर H है और दूजे दा ऑर्डर H P स्केयर है, यानी 3 दी पावर 2 है। हुण अगर तुहानू याद होवे अगर ग्रुप का ऑर्डर P स्केयर होवे तो अबेलियन हुंदा, वैसे तो नॉर्मल भी है। तो साडे कोल 2 सब ग्रुप आ गए, ऑर्डर ऑफ H 3 स्केयर और ऑर्डर ऑफ K 5 है। ठीक है जी, तो अगर ता ये साडे कोल दोनों अबेलियन हो गए क्योंकि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम P स्केयर इज अबेलियन और कोई भी प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप भी अबेलियन हुंदा। ये बारे होर आपां जो जो साडी नॉलेज है असी उस नॉलेज नू इस हिसाब दे नाल समझिए। ठीक है, हुण आपां इनू बेसिकली जदों एच के प्रोडक्ट का ऑर्डर G दे बराबर होवे तां असीं इनू इस तरह बनाउण दी कोशिश करिए एच के, यानी G इज इंटरनल डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच के, है ना। और ये बनाने दे लई सानू इन्ना पता एच के दा सब ग्रुप आ उहदे बारे सानू क्लैरिटी आ। असी पहला देखिए एच इंटरसैक्शन के साडे कोल किहदे बराबर आ जाता, इस वैल्यू नू समझण दी कोशिश करिए। तो एक तो साडे कोल वैल्यू किहदी निकलेगी ऑर्डर ऑफ एच के असी फाइंड आउट करांगे। Now as we know that, चलो इनू देखिए सेम ही मैथड लगना, H इंटरसैक्शन के H का भी सबसैट आ, H इंटरसैक्शन के K का भी सबसैट आ। ਇਹਦਾ मतलब बाय लैग्रैंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन K ऑर्डर ऑफ H नू डिवाइड करेगा जिहड़ा 9 के बराबर आ, ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन K जिहड़ा कि ऑर्डर ऑफ K नू डिवाइड करेगा जिहड़ा कि 5 के बराबर है। इहदे तो डिवाइजर किहड़ा पॉसिबल हो रहा 1 या 5, ध्यान रखियो 1 या 5 है ना, जे इनू डिवाइड कर रहा या 1 होएगा या 5 होएगा। इहदे तो पॉसिबिलिटी किहड़ी हो रही है 1 3 या 9,
तो कॉमन पॉसिबिलिटी किहड़ी निकल रही है, सिर्फ 1 दी। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के 5 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के 5 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के 9 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के ਦੋਨਾਂ ਦੇ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ऑर्डर ऑफ H इंटरसैक्शन के 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। क्लियर हो गया। सो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। दूजे पासे सानू पता क्योंकि H नॉर्मल आ, H के ए जी का सब ग्रुप हो गया क्योंकि H नॉर्मल आ, H के ते के H बराबर आ, तो H के साढ़े को जी का सब ग्रुप हो गया। और ਇਹਦਾ ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ H के कितना होएगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ के ओवर ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। आ कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ H ये हो गया 9, दिस इज 3 स्क्वायर, और ये कितना आ गया 5, 9 गुणा 5 बटा 1 कितना आ गया 45, और एक किहदे बराबर आ, जी दे ऑर्डर दे बराबर। ठीक है जी। तो आ इहदा सब ग्रुप भी है, दोनों का ऑर्डर सेम भी है। तो ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल की आ गया, जी जिहड़ा है ये एच के दे बराबर आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल टू एच के। एच की है अबेलियन ग्रुप, और के की है के भी अबेलियन, के भी अबेलियन। तो दोनों का डायरैक्ट प्रोडक्ट यानी जी भी साढ़े कोल की हो जाएगा, वो भी अबेलियन हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 is a abelian group. So in this way we can prove our result by using Salo theorems. So we will discuss some more example in the next lecture.